آئیے حضرات، اب آپ کا تعارف میں اس شخصیت سے کروانے جاؤں کہ جو اپنے اطراف و جوانب میں بکھری ہوئی انگریزی کو سہتے سہتے اردو کا کام کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ میں ان کی طرف اشارہ کروں تو مجھے یہ لائنیں یاد آتی ہیں کہ چمکتی دھوپ گھنی چاندنی سی ہوتی ہے، چمکتی دھوپ گھنی چاندنی سی ہوتی ہے، تمہارے ساتھ یہ دنیا نئی سی ہوتی ہے، اور خدا نے چاندنی بخشی ہے اس کے لہجے میں، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ میں ان کے تعلق سے یہ بتاتا چلوں کہ لگ بھگ 30 سالوں سے محترمہ شبانہ ابراہیم صاحبہ لندن کی سرزمین پر اردو کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ میں تو یہ کہوں کہ یہ ان کی کوشش ایودھیا میں اذان دینے کے برابر ہے۔ یہ ایک ان کی اپنی کتاب ہے پہلی سوچ، جو شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے اور قبولیت عام کی سند بھی پا چکی ہے، اور پورے ہندوستان بھر کے مختلف سیمیناروں میں وہ اپنے مقالے پیش کرتی ہیں، اور بہت سارے رسائل میں ان کے مقالہ جات شائع بھی ہوتے رہتے ہیں۔ میں انہیں اس شعر کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمیں پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں شبانہ ابراہیم صاحبہ سے تشریف لیں۔ السلام علیکم، آواز نہیں آئی؟ وعلیکم السلام کی بہت بہت شکریہ۔ ممبئی اردو فیسٹیول 2022 کے انعقاد اور اس کے شاندار اس فیسٹیول اور اس کے اشتراک سے جو لوگ شامل ہیں یہاں پہ، ساتھ میڈیا پارٹنر، سبھی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ صدر صاحبہ کی اجازت سے میں اپنا مقالہ، جس کا جناب صدر کی اجازت سے میں اپنا مقالہ جس کا عنوان ہے ریاست مہاراشٹر میں اردو اخبارات و رسائل کا اجمالی جائزہ، شعر کے ساتھ میں شروع کرنا چاہوں گی کہ ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، غور کیجیے گا، ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، کبھی اخبار پڑھ لینا تو کبھی اخبار ہو جانا۔ اور ایک شعر ہے، 10 بجے رات کو سو جاتے ہیں خبریں سن کر، 10 بجے رات کو سو جاتے ہیں خبریں سن کر، آنکھ کھلتی ہے تو اخبار طلب کرتے ہیں۔ یہ دنیا جہاں کن فیکون کی صدائے ہر لمحہ بلند ہوتی ہے، چیزیں ٹوٹتی ہے پھر بن جاتی ہے، اسی ٹوٹتی پھوٹتی دنیا میں ہر لمحے کے تغیرات کو دلچسپ اور حسین انداز میں کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا نام صحافت ہے۔ لفظ صحافت کو اگر انقلاب سے تشبیہ دی جائے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا۔ وقت آزادی سے لے کر آج تک ایسے کئی صحافیوں کے نام قابل ذکر ہے جن سے نہ صرف صحافت بلکہ اردو کے ان اخباروں کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھنے کا موقع ملا جسے پڑھ کر اور عمل کر تمام ہندوستانیوں میں جوش و ولولہ بھر جاتا تھا۔ ان ناموں میں مولانا محمد علی، مظہر علی خان اظہر، مولانا مودودی، ابوالکلام آزاد، ثناء اللہ خان، مولانا حافظ موہانی، مولانا ظفر علی خان، مولانا عبد الماجد، زوئے انصاری، حسن کمال، حیات اللہ انصاری، عشرت علی صدیقی، شاہد لطیف وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا بلکہ ہر قید ہندوستانی کو ایک انقلابی سوچ کا جامہ پہنا دیا۔ اب اگر بات مہاراشٹر کی کرے تو اردو کے بہت سے اخبارات و رسائل ہیں جو اس دور جہاں اردو بولنا، پڑھنا اور سمجھنا احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے، وہی اپنا سینہ تانے ان اخبارات کا مقابلہ کر رہے ہیں جنہیں بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ اگر RNI کی رپورٹ سے استفادہ کرے تو اردو صحافت تیسرے نمبر پر ہے۔ ان اخبارات میں اردو ٹائمز، کوکن کی آواز، انقلاب، صحافت، ہندوستان، نشے من، نقش کوکن، بلٹس قابل ذکر ہے۔
साथ ही साथ यहाँ से शाये होने वाले रिसाले भी अहमियत के हामिल हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र नाम शायर, बेबा, इम्कान, उर्दू आंगन, हिंदुस्तानी ज़बान वगैरह है। अल-मुख्तसर उर्दू अखबारात और रसाइल शुरुआत ही से हर मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज के इस सेमिनार में मुंबई से शाये होने वाला रिसाला उर्दू आंगन का भी इश्तराक है। और मेरे लिए और एक बात बात से मुसरत है कि मैं कलकत्ता से शाये होने वाला सहमाई अर्जिश की मशावरत कमेटी में भी हूँ। लेकिन एक ख़ास बात जो मैं उर्दू अखबारात और रसाइल यानी सहाफ़त के हवाले से कहना चाहूँगी वो ये कि आप पहले सहाफ़त की पुख्ता जानकारी और इल्म हासिल करें, उसके बाद कोई अखबार या रिसाला जारी करने का सोचें। उसकी वजह ये है कि आजकल ज़्यादातर सहाफ़ी गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेते हैं और कई बार तो बहुत मुज़ाहिका ख़ैज़ मनाज़िर सामने आए हैं। आप सहाफ़त अखबार या रिसाइल की मुकम्मल वेबसाइट जारी करें, उसकी दस्तयाबी गूगल पर भी हो। ऐसा ना हो कि आपका अखबार या रिसाला गूगल बन जाए, यानी आपका अखबार गूगल पर मौजूद हो लेकिन गूगल ट्रांसलेटर आपके अखबार में न समा जाए। कंप्यूटर ने जहाँ हमें बहुत सी आसानियाँ फराहम की है, वही हमारी किताबें, अखबारात और रसाइल पढ़ने की आदत को भी छीन लिया है। ऑनलाइन अखबारात और रसाइल का गूगल ट्रांसलेटर से शाये कर देने का नतीजा, उसका नतीजा जितना मुज़ाहिका ख़ैज़ है उतना ही दर्दनाक भी है। जैसे एक अखबार मेरी नज़र से गुजरा था जहाँ पर जिगर मुरादाबादी के नाम को लीवर मुरादाबादी लिखा गया था और बिना नज़रसानी के उसे शाये भी कर दिया गया। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब एक आर्टिकल लिखने के लिए न जाने कितने लुग़तों से इस्तेफ़ादा किया जाता था, जिससे जहन में अल्फाजों का ज़ख़ीरा बन जाता था और कुछ नई इस्तिलाहें भी सामने आई थी। नई इस्तिलाहों से मुराद नए नए अल्फाज ईजाद हुआ करते थे। हिंदी में गाड़ी चलाने वाले को वाहन चालक बोलते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि उर्दू में गाड़ी चलाने वाले को हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर? जी नहीं, ये तो अंग्रेजी का लफ्ज़ है। साथ ही क्या हमने कभी सोचा कि फ़ोन को उर्दू में क्या कहते हैं? टेलीफोन? जी नहीं, ये भी अंग्रेजी का लफ्ज़ है। यानी पता ये चला कि हमारी कमज़ोरी और कोताहियों का नतीजा है कि हम उर्दू की हिफाजत का दम भरने वाले लोग नई इस्तिलाहें नहीं निकाल पा रहे। और आप एक ज़ाती तजुर्बा करें कि आप खुद ऑनलाइन शाये होने वाले कितने अखबार या रसाइल पढ़ते हैं। यूँ तो हज़ारों हज़ार अखबार और रसाइल ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन मैं ईमानदारी से बताती चलूँ कि मैं खुद भी उन तमाम अखबार रसाइल का मुताला नहीं करती। किसी शायर ने कहा था, अलग तरसील की सूरत निकालो, अलग तरसील की सूरत निकालो, किताबें अब कोई पढ़ता नहीं, किताबें अब कोई पढ़ता नहीं। तो हमने इंटरनेट का सहारा लिया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, लेकिन अब हम ऑनलाइन भी नहीं पढ़ते। मैं आपसे और आने वाली नस्लों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपने आप को अखबारात और रसाइल से दूर न करें। हर वो शय जो अपने मरकज़ की तरफ वापस आती है वो बाकी रहती है, बाकी सब फना हो जाता है। हम चाहे लाख वक्त की ज़रूरत यानी अंग्रेज़ी ज़बान सीखें या पढ़ें, लेकिन हमें ये जहन में रखना है कि हमारा मरकज़ हमारी मादरी ज़बान यानी उर्दू ज़बान है, और अगर हम उसकी तरफ खींचे न रहे तो हम मिट जाएंगे। हमारी ज़बान ही हमारी पहचान है और हमारा असासा है। और बराए मेहरबानी ज़बान की हिफाजत न करें जो ज़बान आपके वजूद को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हो, आप उसकी हिफाजत क्या करेंगे? हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि आप उसके फ़रोग़ का काम करें, बिलखुसूस अखबारात और रिसाले जारी करें। और नौआमों सहाफ़ियों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपने बड़ों से सीखें, उसके बाद मुताला करें, उसके बाद लिखना शुरू करें। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम पूरी तरह गूगल पर इन्हिसार कर रहे हैं और हमारे बड़े भी हमसे बदगुमानी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन हमें इस शेर को, कागज़ का ये नशा ये महक रूठने को है, कागज़ का ये नशा ये महक रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से प्यार। ये
आखिरी सदी है किताबों से प्यारी को गलत साबित करना है और अपने आप को अखबारात और रसायल से जोड़े रखना है। अपनी ज़बान को फ़रोग़ देने का सबसे बेहतरीन रास्ता है, और न सिर्फ अपनी ज़बान बल्कि अखबारात और रसायल एक ऐसा ज़रिया है जो समाज में इनकलाब ला सकते हैं, हमें गुलामी से निजात दिला सकते हैं, हमें लड़ने के काबिल बना सकते हैं। याद रखें, ये उन तमाम अखबारात और रसायल की देन है और इन अमल करने वाले हिंदुस्तानी क़ारीन की देन है। आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा ना हो कि आजकल हम देखिए आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब लिखा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बेशक आज वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात व एहसासात बदल गए। उर्दू सहाफ़त का सिलसिला यूं ही जारी रखिए, और इस उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, कि जब तक एक भी उर्दू बोलने पढ़ने वाला जिंदा है, उर्दू सहाफ़त जिंदा रहेगी। हमारे वजूद को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली ज़बान जिंदा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। कागज़ के खुशबुओं का नशा टूटने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। मसला सिर्फ उर्दू ज़ुबान का नहीं है, ये मोबाइल ने है सब तमामी ज़ुबान के लोगों को कागज़ की खुशबू से दूर कर दिया है। बहुत खूबसूरत मकाला मोहतरमा शबाना इब्राहिम साहिबा ने पेश किया। मुझे वो पढ़ रही थी तो याद आ रहा था, उन्होंने शेर कहा कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मुझे ये शेर याद आया कि हालांकि ये सब लोगों पर साबित नहीं आता, लेकिन शेर है कि लानत है मुदीरों पे मेरे दौर के अजमल, लानत है मुदीरों पे मेरे दौर के अजमल, खबरें भी नहीं हो तो ये अखबार बना लिए। तो टेबल न्यूज़ आजकल बहुत चलने लगी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शबाना इब्राहिम साहिबा का और उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ।